box containing 2 dozen mirrors is dropped. Okay, so how many mirrors are there actually? So let's write down that there are mirrors is going to be 2 dozen. So 2 multiplied by 12 is 24. Which of the following can be the ratio of broken to unbroken mirrors? So why I started with this problem actually, this is an important problem in terms of mirrors. So what are mirrors? Mirrors, peoples, coins, or anything which cannot be in two pieces or should be an integer number. तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर कि आपको एक चीज याद रखना है कि ये सब लोग इंटीजर्स होने चाहिए. ओके, सो दैट्स व्हाई इट स्टार्टेड विद दिस वन. तो 24 को अगर 5:4 में डिवाइड करना है तो जो भी होगा ऑप्शन नंबर 1 में वो एक इंटीजर नंबर आना चाहिए. ओके, so 5:4 को अगर आप सॉल्व करोगे, so this is 5k and 4k, and 5k plus 4k का total what should be it? It should be 24. Is k is going to be 24 upon 9, so this is going to be 8/3. Now if it is k is equals to 8/3, so let's put over there 5 into 8/3, and this is not going to be an integer number because आप 3 से ना तो 5 को काट सकते हो ना आप 8 को काट सकते हो. अगर ऐसा है so ये वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा. तो अगर इंटीजर नहीं आएगा so we can directly pick the option that wherever the sum of two numbers should be a factor of 24. If this is a factor of 24, then you will get the answer. 5 plus 4 is 9. 9 is not a factor of 24. 4 plus 1 is a 5. It's not a factor of 24. 7 plus 3 is 10. It's not a factor of 24. Finally 5:3. It should be the answer actually because it's the last option. So what is it? 5:3. So what is 5:3, or how can you start 5:3? You can say 5:3 is what? 5k, and this is 3k, and sum of 5k plus 3k should be equals to 24. So 8k is equals to 24. So k is going to be 3. If k is going to be 3, then just put the values. So first one was what? 5k. So 5 3s are 15. And 3 3 is a 9, so that is broken and that is unbroken mirror. Okay, so whenever these type of problems are there, make sure that you are starting or you are looking for some integer values, or some of the fractions or ratios should be an integer value. The ratio of the surface areas of two spheres. So what are the surface area of a sphere? The surface area of a sphere is what? 4 pi r square. Okay, now the surface area of two spheres, so ratio is given to you. So let's say there are two spheres of radius r1 and r2. So this is 4 pi r1 square divided by 4 pi r2 square, and that is given to you as 9:4. 4 pi से 4 pi काट दीजिए, r1 square upon r2 square. So let's find out value of r1 upon r2 is 9:4. Square root of 9 by 4, so that is 3/2. Now what we need to find out? We have to find out the volume of ratio of volume actually. So what is the volume of sphere? Volume of sphere is given by 4/3 pi r cube. This is 4/3 pi r cube. So V1 is the first volume, V2 is the second volume. So there are two radiuses. So 4/3 pi r1 cube divided by 4/3 pi r2 cube. 4/3 pi से 4/3 pi काट दीजिए, r1 upon cube upon r2 cube को we can say it is r1 upon r2 cube. What is r1 upon r2? That is given to you as 3/2. So finally 3/2 cube, so that is 27/8. So what is the ratio of volumes? It is given by V1 upon V2. It should be 27/8. Okay, so you can also do with the same, like cylinder, sometimes it is going to be circles. So whatever there, find out the common values, whatever the common values you are having, and then you can do it further. A person has a total of rupees 210 in the form of 1 rupees 50 paisa and 25 paisa coin. तो जैसे भी ये क्वेश्चंस आते हैं तो टोटल मनी कैसे निकलता है? सो टोटल मनी हमेशा ऐसे निकलता है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय रेशियो. जितने भी रेशियोज हैं ऑफ कॉइन्स और जितने भी डिनोमिनेशंस है पैसे की, इसको जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आपको रेशियो इनटू डिनोमिनेशन से टोटल पैसा मिलने लग जाएगा. लाइक मैं कहूँ कि अगर 5 रुपीज वाले 7 कॉइन्स हैं, ओके, तो आपके पास कितना रुपीज हो जाएंगे? इट इज गोइंग टू बी 35 रुपीज. यहाँ भी सेम ऐसा ही होता है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है.
तो टोटल 210 रुपीज़ है। और आपको एक तो 1 रुपीज़ कॉइन है, क्योंकि सब कुछ रुपीज़ में है तो 50 पैसा कॉइन को मैं 1/2 रुपीज़ लिख देता हूँ एंड 25 पैसा को मैं 1/4 रुपीज़ लिख देता हूँ। आगे उसने कहा है कि 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशो। तो पहला जो कॉइन है 2.5 रेशो 3:4 है। 2.5 को 5/2 लिख लेते हैं, दिस इज 3:4। रेशो को हटा के कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लें, सो दिस इज 5/2 के, दिस इज 3 के एंड दिस इज 4 के। ओके, ये 1 रुपीज़ वाला कॉइन है तो मल्टीप्लाइड बाय 1 कर लें ताकि रुपीज़ पता चल जाए। तो यहाँ से आपके रुपीज़ आ जाएंगे 5/2 के। 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1/2 से, सो यू विल गेट द वैल्यू एज 3/2 के। और 4 के को मल्टीप्लाई करोगे आप 1/4 से 25 पैसा को, तो आपको मिलेगा, एक बार 4 के इसको बाय 4 ही लिख लीजिए क्योंकि ये एलसीएम बनाएंगे तो आप इसको काट दोगे तो अननेसेसरी आप अपने क्वेश्चंस को लेंथी पार्ट पे ले जाओगे। नाउ इसका सम, व्हाट शुड बी द सम ऑफ दीज नंबर्स, इट शुड बी इक्वल्स टू 210, सो 5/2 के प्लस 3/2 के प्लस 4 के बाय 4 and let's write down it should be equals to 210। LCM 224 का बहुत आसान सा है, 4 आ जाएगा और यहाँ से 5k प्लस 3k प्लस 4 से 4 काट दीजिए, सो दैट इज 4k इक्वल्स टू 210। एक चीज और कर सकते थे आप यहाँ पे 5/2 प्लस 3/2, सो 5/2 एक्चुअली होता है 2.5, ये होता है 1.5, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 2.5 एंड 1.5 इज व्हाट 4, और ये सिंपल तो 1 था ही, तो 4 + 1 5। तो यहाँ से आप 5k इज इक्वल्स टू 210 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि एक्सप्लेन करना जरूरी है तो लिख लेते हैं। 5 + 2 is 7, 5 + 3 is 8, 8 + 4 is 12k, so this is 12k, this is divided by what 3। इससे इसको काट दें तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी गलती हो गया, 2 2s are 4, so this is what 10k, 2 2s are 4, so this is 6k and this is simply 4k। 10 + 6 16 + 4 is what 20, so that is 20k, this is what 5k। 5 से 210 को काट दीजिए तो फाइनली आपका k का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। सेम स्टैंड्स विद दिस, यहाँ भी k का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। आपको 1 रुपीज वाला कॉइन चाहिए थे, कितना वैल्यूज था, दिस इज व्हाट 5/2 टाइम्स ऑफ k, सो लेट्स राइट डाउन 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 24, 12 5 60, 60 ही कॉइन थे, और क्योंकि 1 रुपीज का कॉइन है तो 60 ही इसमें रुपीज कन्वर्ट होंगे। ओके, सो whenever these type of problems are there, make sure that you are using this thing, that money is equals to ratio into denominations। जितना भी रेशियो दे रखा है कॉइन्स का और जिस डिनोमिनेशंस को आप यूज कर रहे हो, so you can start with directly with this। Okay, let's find out the next problem। The cost of diamond, it's an important question actually, ये बहुत एग्जाम्स में पूछते हैं। The cost of diamond varies directly at the square of its weight, so let's say cost c है और इसका weight जो भी होता है इसके स्क्वायर के बराबर होता है। स्ट्रेट अवे इसका कांस्टेंट बना के इसकी एक वैल्यू बना लेते हैं, तो फाइनली c is equals to kw²। Once this diamond broke into 4 pieces with the weight in the ratio 1:2:3:4, तो ये जो डायमंड था ये 4 पीसेस में चला गया एंड द वेट वाज 1:3:4, सो इसको भी ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दैट इज k, 2k, 3k एंड 4k। तो इसका मतलब जो टोटल वेट था स्टार्टिंग में वो आप कितना लिख सकते हो, टोटल वेट हो जाएगा आपका 10k, ये ब्रेक होने के बाद इन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। नाउ अगर k, सॉरी यहाँ पे फिर आप x जूम कर लीजिए, सो दिस इज c इज इक्वल्स टू x k w² और w का वेट है 10k, तो जो कॉस्ट है ओरिजिनल वो आ जाएगा x 10k का होल स्क्वायर, सो इट इज 100k² x एंड दिस इज योर ओरिजिनल कॉस्ट। ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगा, दैट इज 100k² x। अब ब्रेक होने के बाद कॉस्ट, 4 कॉस्ट निकलेंगे इसके, सो लेट्स से C1 फर्स्ट कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा x, और उसमें फर्स्ट वेट कितना है इसका k, so this is k², so this is k² x। cos second is x और second time weight कितना है 2k का स्क्वायर, so finally it is 4k² x। c3 is equals to x is 3k whole square, so this is 9k² x and c4 is x times of 4k का whole square, it's 16k² x। तो जब
ब्रेक हो जाएगा, सो दीज आर द विंडो ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा तो टोटल कर लेते हैं ब्रेक होने के बाद। सो दिस इज गोइंग टू बी 16 प्लस 9 is 25 प्लस 5 is what 30k square x. So after break this is going to be your cost, and in the starting that was your cost. The difference between the cost, or you guys can say the loss incurred, you can say, so that is लॉस कैसे निकालोगे? ओरिजिनल प्राइस कितना था 100k स्क्वायर एक्स, और अब कितना रह गया 30k स्क्वायर एक्स, और इसका डिफरेंस कितना है 70,000। तो यहाँ से 70k स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 70,000, तो 70 से 70 तो 1, सो k स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1000। आपसे पूछा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, सो ओरिजिनल प्राइस कितना था, इट वाज 100k स्क्वायर एक्स, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं k स्क्वायर एक्स का। 100 मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर एक्स इज 1000, सो यहाँ से 1 लाख रुपीस आपका टोटल प्राइस आ जाएगा, जो कि स्टार्टिंग प्राइस था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार इनमें परसेंटेज डिके बताता है, कई बार रेशियो इतना रह गया, सो मेक श्योर है कि आप ओरिजिनल से लेटर ऑन का डिफरेंस निकाल लीजिए एंड देन उसको अपने मैथमेटिकल टर्म्स में सेट कर लीजिए। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। द स्पीड ऑफ अ रेलवे इंजन इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं कि इसका ओरिजिनल स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर। बाद में उसने कहा कि व्हेन नो कंपार्टमेंट अटैच्ड एंड द रिडक्शन जो होता है स्पीड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स अटैच्ड। ओके, मैं समझाता हूँ आपको। इसका मतलब है कि लेट्स से स्टार्टिंग में कुछ इंजन है और इंजन जो चलता है वो कुछ 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है। जैसे ही आप इसमें कंपार्टमेंट अटैच करने लग जाओगे, तो लेट्स से आपने n कंपार्टमेंट अटैच किए, तो जो रिडक्शन होगा उसने वैल्यू दे रखा है कि इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ n। जितना भी नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स होंगे उसी प्रोपोर्शनल में उसका रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि रिडक्शन इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी 40 से डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। सो लेट्स से ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की S1 मान लेते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी 40 और इसमें से रिडक्शन स्टार्ट होगा और रिडक्शन का वैल्यू कितना है k टाइम्स ऑफ रूट n। सो दैट इज गिवन टू यू। नाउ लॉजिकली अगर आपको कुछ वैल्यू निकालना है तो k और n में से किसी का वैल्यू देना पड़ेगा, और उसने दे भी दिया है कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन कैरिड बाय दिस इंजन इज 24 किलोमीटर पर आवर when 8 compartments are attached. Okay, so actually यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए, bit problem है over there। और ओरिजिनल क्वेश्चन एक्चुअली ये 42 है और ये 24 है और ये वाला 9 है एक्चुअली। ओके, सो इसको 42 कर लीजिए। सो दिस इज 42 k टाइम्स ऑफ रूट n। तो उसने कहा कि सिर्फ 24 स्पीड रह जाता है जब उसका ओरिजिनल स्पीड 42 था और नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स आपने अटैच किए 9। सो दिस इज k मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 आई होप आपको सबको पता है। सो दैट इज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ k। 3k आप इधर ले जाइए, 42 माइनस 24 इज 18। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। k का वैल्यू 6 आ जाएगा जो हमने निकाल लिया है। लेकिन अभी प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम यह है कि उसने कहा है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स आप इसमें अटैच कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम इतने एक बार कंपार्टमेंट अटैच करते हैं कि बिल्कुल ट्रेन आगे मूव होना ही बंद हो जाए। सो लेट्स से कि इतने कंपार्टमेंट अटैच हो गए कि उसका जो ओरिजिनल स्पीड था वो 0 हो गया, 42 एज इट इज था, k का वैल्यू आपको पता है 6 है, और स्क्वायर रूट ऑफ n नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स जो कि मुझे नहीं पता है कि कितने मैंने अटैच किए। सो लेट्स फाइंड आउट दैट व्हाट आर द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स आर अटैच। So 6 square root of n is equals to 42. So square root of n is equals to 7. So n was 49. So when 49 compartments are attached, the train is not going to move further. So अगर 49 कंपार्टमेंट अटैच करने पे फर्दर मूव नहीं होती है, तो अगर एक कंपार्टमेंट कम कर दे तो शायद हल्का सा मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो हल्का सा मूव है that is going to be your answer, the maximum number of compartment that can be carried by the engine. So further it is 49 minus 1 is going to be what 48. So 49 minus 1 48 engine should compartment should be attached. तो आपकी जो ट्रेन है वो बिल्कुल हल्का सा मूव करेगी,
ठीक है. So that is another important question. Let's come to the next one. This is another good question. Three friends went for a picnic. First bought 5 apples. तो first वाला जो था उसने 5 apples परचेज कर ली. सेकंड वाला था उसने 3 apples परचेज किए. Bought 3. The third friends for our brought only rupees 8. और जो थर्ड वाले का कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 8 रुपीज था. तो उसने इन दोनों को ये 8 रुपीज दे दिए और उन्होंने ये तीनों ने मिलके एप्पल्स खा लिए. तो एक्चुअली में तीनों ने मिलके कितने एप्पल्स खाए? 8 एप्पल्स खाए. और अगर तीनों ने 8 एप्पल्स खाए हैं तो 8/3 एप्पल्स जो थे वो ईच कैंडिडेट को मिला है. तो इस वाले को कितना शेयर दिया है? तो इस वाले के 5 एप्पल्स थे जिसमें से 8/3 इसने खुद ने खा लिया है. तो इसने 5 3 15 माइनस 8 7/3 जो एप्पल्स थे वो जो इस वाले को इसने थर्ड वाले को ये शेयर दिया, क्योंकि रुपीज उसी शेयर में मिलेंगे जिस शेयर में आपने कंट्रीब्यूशन किया था. 3 एप्पल्स उसके पास थे, उसमें से 8/3 एप्पल्स आपने खा लिए थे सेकंड वाले ने. तो 3 3 9 माइनस 1 इज व्हाट 1/3 एप्पल इसने थर्ड वाले को दिया था. तो बस इसी रेशो में आपको पैसा मिल जाएगा. 3 से 3 काट दीजिए तो आपको जो पैसा है वो 7:1 रेशो के अंदर मिलेगा. 7:1 रेशो मिलेगा तो फिर तो बहुत आसान है. 8 रुपीज 7:1 रेशो में मिलेगा तो फिर आपको फर्स्ट वाले को 7 रुपीज मिलेंगे, सेकंड वाले को 1 रुपीज मिलेगा. ऐसा करने पर व्हाट इज द शेयर ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड? सो शेयर ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इज गोइंग टू बी 7 रुपीज. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. The ratio of a age of a man and his wife is 4:3. ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि ये एक्सप्लेन कर सके इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. यहाँ पे 3 एजेस होती है, 3 तरह की एजेस होती है. पास्ट एज, एक प्रेजेंट एज और एक फ्यूचर एज. आप हमेशा प्रेजेंट एज को अज्यूम करेंगे तो रेशियो ऑफ ए मैन एंड वाइफ इज 4:3. तो लेट्स से उनका जो अभी रेशियो है 4:3 है. तो इस वाले की एज है 4 के प्रेजेंट एज और इस वाली की एज है 3 के. आई होप अब तक हम समझ गए हैं कि मैंने कैसे 4 के और 3 के लिए. आफ्टर 4 ईयर्स, तो आफ्टर 4 ईयर्स वो दोनों ही 4 ईयर्स प्लस कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 3k + 4. द रेशियो विल बी 9:7. जैसा मैंने आपसे कहा था कि ऑलवेज वी आर लुकिंग टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ k. सो दिस इज व्हाट 4k + 4 divided by 3k + 4 and that is equals to what? The ratio will be 9:7. So this is 9:7. Further, let's solve it and find out the value of what k. 7 4s are 28k plus 7 4s are 28, and that is equals to 27 times of k plus 9 4s are 36. So your k is going to be what? Simply it is going to be 8. If it is going to be 8, so let's put it over there. So you'll get the original 8. 8 4s are 32. 8 3s are 24. Now, if at the time of marriage, obviously time of marriage, so कुछ x years पहले इनकी अगर मैरिज हुई थी तो उस वक्त इनका एज कितना होगा? 32 - x और इनका एज कितना हो जाएगा? 24 - x. और एट दैट टाइम जो इनका रेशियो था दैट वाज 5/3. सो आई थिंक 32 - x divided by 24 - x, this is going to be 5/3. 3 2s are 6, 3 3s are 9, so 96 minus 3x equals to 24, 5s are 120 minus 5x. So finally 2x is going to be what? 24. So your x is going to be 12. तो कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी? So your x is going to be 12. Before 12 years they got married. Okay. Let's come to the next problem. A student got an aggregate of 60% marks in 5 subjects. Okay. So ratio is given, percentage is given to you. तो आप कुछ अज्यूम भी कर सकते हैं. लेट्स से टोटल पेपर कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं. लेट्स से टोटल पेपर 100 मार्क्स का था और उसने कहा है कि उनको एग्रीगेट 60% मार्क्स मिले. तो इसको एग्रीगेट 60 मार्क्स मिले. आगे बढ़ते हैं. इन द 5 सब्जेक्ट और उनका जो रेशियो है दैट इज 10 9 8 7 6. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5. तो 10:9:8:7:6 अगर इसको मार्क्स मिले तो लेट्स से पहले वाले को 10 के मार्क्स मिले, देन 9 के, देन 8 के, देन 7 के और देन 6 के.
और इन मार्क्स का टोटल कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो ठीक है, द पासिंग मार्क्स आर 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। अगर 5 सब्जेक्ट के आपने 100 मार्क्स अज्यूम किए तो एक सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं, 20। अगर किसी को पास होना है सो एटलीस्ट दे नीड 50% ऑफ 10 इज गोइंग टू बी व्हाट, 10। तो अगर 10 marks you have, you can get the passing marks. So 10 is going to be your passing marks. Now the sum is given to you as 10k, 9k, 8k, 7k and 6k. So let's sum it. 10 plus 9, 19 plus 8, 27, 27 plus 7, 34, and this is going to be 40. So this is 40k is equals to 60. So k is going to be what? This is 0, 3 by 2 is what, 1.5. सो के का वैल्यू 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप मार्क्स निकाल लीजिए इंडिविजुअल। तो फर्स्ट को मिलेंगे 10 इंटू 1.5 इज 15, 9 इंटू 1.5 इज व्हाट, 12, sorry, 9 into 1.5 is like 9 5s are 45 and 9 13.5 actually. This is 1.5 into 8 is going to be 12. This is what, 10.5, and finally what you will get, this is 9. So that is the distribution of all your marks. Now what they ask you, then how many subject did he pass the examination. Okay, so जितने भी नंबर्स या जितने भी सब्जेक्ट्स के अंदर 10 से कम मार्क्स होंगे तो वहाँ वो फेल हो जाएगा। तो ये वाला जो नंबर है फिफ्थ सब्जेक्ट के अंदर, उसको ओनली ही गॉट 9, सो 10 वाज द पासिंग मार्क्स, सो ही गॉट पास इन 4 एग्जाम्स और 4 एग्जामिनेशंस। ओके,